جسٹس فار اینڈ بلاسفیمی لاز. ختم کرو ختم کرو. رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو. بلاسفیمی کا جو دھندا ہے بلاسفیمی کا جو دھندا ہے عمر سرہندی کو گرفتار کرو گرفتار کرو. ڈاکٹر شاہ نواز کے خون سے انقلاب آئے گا. کلچر فیتھ کے لوگ پاکستان کونسلیٹ کے سامنے آ کر یہی بات کر رہے ہیں اس ریاست سے کہ مذہبی انتہا پسندی کی ریاستی سرپرستی چھوڑ دی جائے. یہ لوگوں کا وطن ہے, یہ لوگوں کی زمین ہے, اور لوگوں کو اپنے طریقے سے امن کے ساتھ جینے دیں. تو حسن بھائی کوئی نظم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ایک دو اور تقریریں کریں گے. پہلے چھوٹا سا فٹ نوٹ جو میں بھول گیا اپنی تقریر میں, یہ جو عمر سرہندی ہے یہ ایک تاریخی فتنہ ہے. اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے 1960s میں, جب جی ایم سید نے کتاب لکھی تھی مذاہب عالم پر, جین اٹھوا منہ. اب تو وہ اردو میں بھی ہے جیسا میں نے دیکھا. تو عمر سرہندی کے والد نے بھی جی ایم سید پہ کفر کا فتویٰ لگایا تھا. ایک بات یہ ہے. اور دوسرا کہ شاعر تو ہے بلاسفیمس. اگر بھگت کبیر ہوتے تو وہ بھی جو ہے اس میں آج کے پاکستان میں اور آج کے دور میں ہوتے تو ان پر یہ ہوتا, ان پر بھی بلاسفیمی لگتی, وہ بھی واجب القتل ٹھہرائے جاتے کہ دنیا بڑی باوری پتھر پوجن جائے, گھر کی چکی کوئی نہ پوجے جس کا آٹا کھائے. تو اب یہ ہے متفرقات ہے, مسلینیس پوئٹری تھوڑی تھوڑی. ملک پر ملا عذاب, عرض کیا ہے ملک پر داڑیوں پہ یہ خضاب, رضا بھائی داڑیوں پہ یہ خضاب, ملک پر ملا عذاب. داڑیوں پہ یہ خضاب, ملک پر ملا عذاب. یہ فسادی اور بڑے فتویٰ فروش, یہ فسادی اور بڑے فتویٰ فروش, خون انسان کو پیئیں سمجھیں شراب, خون اس انسان کو پیئیں سمجھیں شراب. اور پھر یہاں ان کلمہ گویوں کا حال پوچھو, ان کلمہ گویوں کا حال پوچھو کہ جن پر کلمہ حرام ٹھہرا. ان کلمہ گویوں کا حال پوچھو کہ جن پر کلمہ حرام ٹھہرا. ان کی قبریں اکھاڑ لی گئیں, ان کی قبریں اکھاڑ لی گئیں, ان کی مسجد جلا ڈالی. ان ماتم داروں کا کیا کہو گے کہ جن کو کافر قرار دے کر امام باڑوں کو, کربلاؤں, تربریزہ تمام لاشوں کو نظر آتش کیا جو تم نے. اور ہے یہ میری وادی میں آدم خور اترے ہیں, آخری جو ہے میری وادی میں آدم خور اترے ہیں, یہ طالب ہیں اندھیروں کے سفیران ستم ہے. میری وادی میں آدم خور اترے ہیں, یہ طالب ہیں اندھیروں کے سفیران ستم ہیں. یہ کیڑے آمریت کے کفن کے ہیں, یہ کیڑے آمریت کے کفن کے ہیں. یہ تاریخی حرام زادے ضیاء الحق کے وارث ہیں. یہ کیڑے آمریت کے کفن کے ہیں, یہ تاریخی حرام زادے ضیاء الحق کے وارث ہیں. یہ تاریخی حرام زادے, یہ کیڑے آمریت کے کفن کے ہیں, یہ تاریخی حرام زادے ضیاء الحق کے وارث ہیں. یہ دہشت گرد شہزادے ٹیررسٹ فرینڈز, یہ دہشت گرد شہزادے, یہ تاریکی کے پیغمبر, یہ کہتے ہیں کہ ان کے کام سارے غازیانہ ہیں. حقیقت میں یہ تہذیبوں کے منہ پر تازیانہ ہے. یہ دہشت گرد شہزادے, یہ تاریکی کے پیغمبر, یہ کہتے ہیں کہ ان کے کام سارے غازیانہ ہیں. حقیقت میں یہ تہذیبوں کے منہ پر تازیانہ ہے. شریعت شیخ صاحب ان کی خودکش بمباری بربریت ہے. شریعت شیخ صاحب ان کی خودکش بمباری بربریت ہے. عورت سے انہیں ازلی عداوت ہے, عورت سے انہیں ازلی عداوت ہے. محبت سے خدائی دیر ہے ان کا. حجاموں لختیوں سے ٹپوں گیتوں سے, حجاموں لختیوں سے ٹپوں گیتوں سے, کبھی بدھ سے کبھی رحمان بابا کی غزل سے یہ الجھتے ہیں. حجاموں لختیوں سے ٹپوں گیتوں سے, کبھی بدھ سے کبھی رحمان بابا کی غزل سے یہ الجھتے ہیں.
हुस्न व फन, कुफ्र व शिर्क है इन पर। मेरे बेटे और मेरी बेटी की नंगी पुश्त पर फतावाए आलमगीरी तहरीर करते हैं। किसी का सर, किसी का दस्त बाजू काट देते हैं। किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी गिरजा, किसी स्कूल, किसी घर को उड़ाते हैं। खुदा के नाम पर धरती को दोज़ख में बदलते हैं। यदीमुल्लाह व फसाद फी सबीलिल्लाह, निज़ाम अदल इनका कासवाना है। जहाजी जहन्नमी है, तालिबा है, मौलवी है, गैर इंसान है। वाह वाह वाह, जबरदस्त। एमडी बबर, मैं चाहूंगी कि एमडी बबर बात करें हमारे साथ हैं। एमडी बबर है यहाँ पर? वजूद में आया है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है वो कपड़ा टंगा हुआ है 2 रंगों वाला। तो उसके बाद हमारे बड़े सगीर का अमन तबाह हो गया है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने पहले ही कहा था कि आप मजहब के नाम पर एक शैतानगिरी कर रहे हैं और ये जो अपनी धरती को बांट रहे हैं, ये किस्सा नहीं चलेगा। और आपने देखा कि 71 में जो है बांग्लादेश हमसे आजाद हो गया। उन्होंने अपनी लाखों जानों की कुर्बानियां दी, अपनी जो है औरतों की जो है वो जो है रेप हुआ उनके साथ, वर्दी वालों ने किया, मगर उन्होंने आजादी ले ली। अब वो हमसे ज्यादा खुश हैं, आजाद हैं। चलो ये जो अभी ताजा वहां पे जो हुआ है कुछ, वो भी वो बर्दाश्त कर लेंगे, वो आगे चले गए हैं। असल में मसला ये है कि मजहब के नाम पे इनको हमारी धरती चाहिए, हमारे वसीले चाहिए, हमारा दरिया चाहिए। और ये तो एक पेश इमाम भी सिंध में इंपोर्ट करते हैं पंजाब से कि भाई हमारी तेल कंपनियां हैं, गैस कंपनियां हैं। मैं जिस शहर से ताल्लुक रखता हूँ वहां से गैस निकल रहा है, वहां से जो है वो ऑयल निकल रहा है, वहां पे बहुत सारे कुदरती वसाइल हैं, मगर पेश इमाम पंजाब का आएगा जो वहां पे फितना और फसाद करेगा। हमारे सिंधी लोग बहुत अमन पसंद है और वो तो काबतुल्लाह शरीफ की तरफ पांव भी नहीं करके सोते। तो ये हमें जो है कहते हैं कि भाई ये जो है अपना तौहीन करते हैं मजहब की, ये तौहीन रिसालत करते हैं, ये फिलानी तौहीन है, ये फिलानी तो। भाई आप जो तौहीन करते हो, आपने तो काबतुल्लाह शरीफ पे गोलियां चलाई, आप उनकी औलाद हो। सिंधियों ने तो नहीं चलाई, वो तो नौकरी छोड़ के बेचारे सादे चले आए, आपने वहां भी गोलियां चलाई। आज भी आप जो है वो लाल मस्जिद में आपने क्या किया? ये तो सारा ड्रामा है। मजहब के नाम पे हम सिंधियों को लड़ा जा रहा है। पश्तीनों को इन्होंने जो है वो तकसीम कर दिया। बलोच और सिंधियों के वसीले पर कब्जा करने के लिए इन्होंने ये जो है चाल चली है, ये शैतानगिरी है जो हमारे मुल्लाओं की ये सपोर्ट कर रहे हैं और उनको ये फंड दे रहे हैं कि भाई आप जो है इनके साथ लड़ो। जिस जैसे कौम परस्त और जो बाशऊर सिंधी कौम है वो वहीं रुकी पड़े और हम कामयाब हो जाएं और हम जो है वो दरिया भी कब्जे में ले लें और वो वसीले भी ले लें और सिंध की जमीन भी ले लें। और अफसोस ये है पीपल्स पार्टी जो ड्रामा करती है कि हम जमहूरियत पसंद पार्टी है, मगर ये जमहूरियत पसंद नहीं है। शाहनवाज जो 96 में इन्होंने तालिबान को पहले एक्सेप्ट किया था तो वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और नसीरुल्लाह बाबर ये कहते थे बड़ी दावा से कि हमने इनको जो है वो ट्रेंड किया है। हमारा एहतजाज है डॉक्टर शाहनवाज कुंभर का जो कत्ल हुआ है सिंध में उमरकोट डिस्ट्रिक्ट में, जो उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा के उसको अगवा करके मुल्लों ने, उमर सरहंदी जो मुल्ला वहाँ का दहशतगर्द है, उसने अपनी अदालत लगा के पुलिस के साथ उसका कत्ल किया, उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसको मारा गया और उसके बाद जाली पुलिस मुकाबला दिखा के उसका इनकाउंटर दिखाया गया। ना सिर्फ इतना, जब ये सारा कुछ होकर, इतनी कहानी होकर, वारिसों ने लाश उठाई, जब वो दफनाने गए तो उस लाश को उन्होंने दफनाने भी नहीं दिया और उसको जला दिया। इतनी बड़ी दहशतगर्दी इन्होंने की है। जीए सिंध कौमी महाज समझती है कि सिंध के अंदर ये जितनी भी मजहबी इंतहा पसंदी है, ये रियासत की सरपरस्ती में, फौज की सरपरस्ती में और जितनी भी फोर्सेस हैं पाकिस्तान में, वो चाहे पुलिस हो, रेंजर्स हो, एमआई हो, आईएसआई हो, उनकी सरपरस्ती में ये दहशतगर्द पलते हैं और ये दहशतगर्दी करते हैं। पाकिस्तानी रियासत
मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। उन्होंने सिंधियों के, बलोचों के, पश्तूनों के, कश्मीरों के सबके हुकूक खाए हुए हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान को, पाकिस्तानी रियासत को, फौज को हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी लैंड चाहते हैं, हमारे रिसोर्सेज चाहते हैं, मगर उसमें रहने वाले जो बाशिंदे हैं वो उनको वो पसंद नहीं है, उनकी कोई जरूरत नहीं है। मगर शायद इनको तारीख का पता नहीं। हम सिंधी बड़े अमन पसंद लोग हैं, हम सिंधी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हमारी पूरी तारीख है, हमने कभी भी किसी के ऊपर हमला नहीं किया, हमारे किसी भी किंग ने किसी दूसरे किंगडम में जाके हमला नहीं किया, हमले आवर नहीं हुआ। मगर जब भी धरती की बात आई है, जब भी वतन की बात आई है, तो सबसे पहले आके हम लड़े हैं, अपने वतन पर कुर्बान हुए हैं। मगर किसी भी ये मजहबी जो उलमाए किराम अपने आप को कहलाते हैं, ये उलमाए किराम हैं। इनको न कुरान का पता है, न इनको लकुम दीनुकुम वलिय दीन की पता है, और ये हमें कहते हैं कि ये मुल्लद हैं, जाहिल हैं। मैं आज भी दावा करता हूं, कोई भी आलिम, ये जो जाहिल आलिम है जो फतवा लगाते हैं लोगों के ऊपर 50-50 लाख का, उमर सरहदी को भी चैलेंज है। हमें पता है अलिफ लाम मीम जालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन से लेके मिनल जिन्नत वन्नास तक हमें कुरान का पता है कि कुरान में क्या है। मैं दावा करता हूं कि इसको ये पता नहीं है। ये जाके आम लोगों को भड़काते हैं। सबसे पहले ये तो सिंध के रहने वाले लोग भी नहीं हैं। आज भी कल दोस्तों ने 23 नवंबर को हैदराबाद में फिर एहतजाज का ऐलान किया है, तो कल मुल्लों ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम ये रैली निकालने नहीं देंगे। भाई, ये तुम्हारे बाप का शहर नहीं है हैदराबाद, ये सिंध तुम्हारे बाप का नहीं है। सिंध सिंधियों का तारीखी वतन है। हम सब मजहबों की, सब जितने भी सिंध में रहने वाले मज़ाहिब लोग हैं, उनकी बड़ी दिल से इज्जत और एहतराम करते हैं। मगर जो भी लोग दहशत गर्दी करेगा मजहब की आड़ में, हम उसे कभी भी इजाजत नहीं देंगे कि हमारी धरती पे आकर तुम ये फसाद करो, लोगों को मारो, फितना करो, फतवाएं जारी करो। हम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुमने देखा है हमारा रुख, हम खाली हाथ आकर भी, हम निहत्ते लोग, हमारी लड़कियां खाली हाथ आकर भी अपना एहतजाज नोट करवाते हैं। तुम जब भी आते हो सरकार की सरपरस्ती में आकर, हथियार लेके आकर दंगा फसाद करके शहरियों को नुकसान पहुंचाते हो। मगर हमने कभी भी हमारे लोगों ने ऐसा नहीं किया। फिर भी आपको हमारे से खौफ है। डरो उस दिन से जब हमारे नौजवानों ने डंडे उठाए तो आपको छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। और हुआ, और वो भी एक लिबरल पॉलिटिशियन जब वो वजीर आजम थे उनके होते हुए हुआ। और आज उनकी पार्टी जो है वो अपनी लिप सर्विस तो करती है, लेकिन साथ में जब जामी चांडियो और उसकी बेटी रोमेसा और अमर सिंधु और दीगर बहादुर लोग जाते हैं तो उनको वो डंडे मारते हैं, घसीटते हैं। ये कैसी पार्टी है और ये कैसी सियासत है? तो ऐसी जो लिबरल सोच है वो तो खत्म हो, उस पर लानत है। अगर ये लिबरल है तो फिर पता नहीं और क्या होगा। हमें इसके साथ साथ ये भी आवाज उठानी चाहिए, पाकिस्तान की हर सियासी पार्टी इस धंधे में बराबर की शरीक है, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो मजहब के जो व्यापारी हैं, जो सबसे बड़ी बेईमानी है पाकिस्तान की, वो सब इस धंधे में शामिल है। और वो अव्वल दिन से उन्होंने ये स्टार्ट कर दिया था कि मजहब को कैसे बेचेंगे। इस चूरन को बेच के उन्होंने पूरे मुल्क को एक मजाक बना दिया, पाकिस्तान को मजाक बना दिया, पाकिस्तानियों को मजाक बना दिया है। और कोई बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग, औरत महफूज नहीं है। सबसे आसान काम है ब्लास्फेमी का चार्ज लगाओ, बंद करवा दो, या एक मॉब ले जाकर उनको मार दो। और अब तो माशाल्लाह पुलिस ने अपना फरीजा संभाल लिया है। बलूचिस्तान में पुलिस ने मारा, सिंध में मारा, पंजाब की जेल में
जो कैदी होते हैं ब्लास्फेमी के मुजरिम, उनको पकड़ के एक कांस्टेबल उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये चंद साल पहले का वाकया बता रहा हूँ। पूरे मुल्क की पुलिस इसमें शामिल हो गई है, क्योंकि हमने अपने हाथों से ये कांटे, ये कांटों की जो फसल बोई थी, आज वो सबको काट रही है। इसलिए हमारा मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से, हम यहाँ पर इसलिए आए हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये हम तकरीरें करें, हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर शाहनवाज के जो वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, पुलिस वाले हैं, दीगर लोग हैं, उनको इबरतनाक सजाएं दी जाए, उनको पकड़ा जाए। ये दहशतगर्द तंजीमें जो बनाई गई हैं लोगों को दबाने के लिए, उनको बैन किया जाए। दुनिया में कहीं दहशतगर्दों की इजाजत नहीं है, तो पाकिस्तान में क्यों है? मैं तमाम दोस्तों का मशकूर हूं जो वर्जीनिया, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क स्टेट और पता नहीं कहां से दोस्त आज नॉर्थ कैरोलिना आज इस एहतजाज में शामिल हुए हैं, जो एहतजाज खून है इंसानियत का, जो एहतजाज उस आग के खिलाफ है जो आपके, मेरे, आपके घरों के अंदर लगी हुई है आग, और इस आग को लगाने वाले इसी बिल्डिंग के चलाने वाले हैं, वो पिंडी के जर्नेल हैं, जिनको अपनी फैक्ट्री, जिनको अपनी बिजनेस को पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट करना है, और आपको, हमको इस मजहबी इंतहा पसंदी की आग में धकेला है ताकि ये पाकिस्तान के मजलूम अक़वाम के वसीलों के ऊपर काबिज रहे। इनको इंटरनेशनल फोरम से, कंट्रीज से मुस्तकिल एक आमदनी चाहिए, और इस आमदनी को चलाने के लिए हमें उस मजहबी इंतहा पसंदी की आग में धकेला जा चुका है। ये आग, जिस आग में डॉक्टर शाहनवाज को जलाया गया, ये आग कल आपके घर में लग सकती है, कल आपका बच्चा जलेगा, कल आपकी बहन जलेगी, कल आपका भाई जलेगा। और इस आग के खिलाफ पाकिस्तान की तमाम मजलूम कौमों को साथ में मिल के लड़ना पड़ेगा। तब तक, जब तक हम साथ नहीं हैं इस मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ, मैं समझता हूं कि इस मजहबी इंतहा पसंदी की आग में न सिर्फ सिंध जल रहा है, न सिर्फ पख्तूनख्वा जल रहा है, न सिर्फ बलोचिस्तान जल रहा है, न सिर्फ कश्मीर जल रहा है, लेकिन पंजाब में ये आग ज्यादा है। ये धुआं पंजाब से उठा था। ये आग आज इंसानियत के खिलाफ है, और इसी धंधे, और इसका रीजन जो है, इस मुल्ला गर्दी के जो पीछे जो आग लगाने वाले हैं, वो सुकून से बैठे हुए पाकिस्तान के जनरल है, कोई आम आदमी नहीं है। क्योंकि इन लोगों को अपने सोर्सेस को बहुत मजीद स्ट्रांग करना है, और ये सिंध में जो आग लगाई गई, डॉक्टर शाहनवाज को कत्ल किया गया, ये प्री प्लान वाकया था, ताकि वो 6 केनाल जो सिंध से निकाले जा रहे हैं, सिंध की सियासी मज़ामत को, सिंध के अवाम को इस कॉन्फ्लिक्ट में पीछे लगाया जाए, ताकि वो हमारे जो आबाद जमीनें हैं, जो अब तो बची ही नहीं है, जो जमीनें हमारे पास बची ही नहीं है, जो कुछ काश्तकार सिंध में जो है वो आखिरी फसलें उठाते हैं, अब ये वो पानी भी हमारा खत्म करना चाहते हैं, ताकि उन 6 केनालों के जरिए पाकिस्तान ग्रीन कंपनी के नाम पे ये हमारे मजीद वसाइल, अपनी फौजी आबादकारी जो इनकी प्री प्लान है, उन जमीनों को आबाद करें। हम इस मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ हैं, जितने भी दोस्त हैं। इंसानियत का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। पाकिस्तान का दो कौमी नजरिया इसी मजहबी तासुब के ऊपर ही बनाया गया था।
हुसैन जीएम सैयद ने वियना कॉन्फ्रेंस में 1952 में कह चुका था कि दुनिया में जो भी मुल्क मजहब की बुनियाद पे बनेगा उसका असर वही होगा जो पाकिस्तान का हो रहा है और जो पड़ोसी ममालिक में हो रहे हैं, चाहे वो लिबनान हो, सीरिया हो, इराक हो, कुवैत हो, ईरान हो, फलस्तीन हो या इसराइल हो। हम अमन पसंद सिंध के लोग इस मजहबी इंतहा पसंदी का उसी तरीके से डट के मुकाबला करेंगे जैसे शाहनवाज के कत्ल के खिलाफ हमारी बेटियों ने जुर्रत करके अमरकोट में जाकर एहतजाज किया। मजहबी इंतहा पसंदी मुर्दाबाद, मजहबी इंतहा पसंदी मुर्दाबाद।